Hello students, myself Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. Students, I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Today, I'm going to start a series of lectures on aldehydes, ketones and carboxylic acids of class 12th, and this is your lecture first. Since this is my first topic of the organic chemistry, so I would like to suggest you, when you are studying the organic chemistry, you must practice the reaction while writing beta. Keep on writing. जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा, उतना बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑर्गेनिक में रहेगी। और उम्मीद करता हूं यू विल एंजॉय द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद मी। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस टुडेज लेक्चर विद द सब टॉपिक्स, दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, and then we'll discuss the nomenclature of aldehyde and ketones. Students, I may divide this video in two parts if the video will be lengthy. So let's start first with the general introduction of aldehydes and ketones. But before starting, beta, in case any problem, you can mail me. My email, my ID is given over here. That is echemistryonline@gmail.com. And my WhatsApp number is 9418605442. Students, I'll try to respond your queries within time. So let's start with the introduction to the carbonyl compounds. Students, carbonyl compounds, they are very important in our life, and the carbonyl compounds are of utmost importance to the organic chemistry. Students, they are the constituents of the fabrics, flavorings, plastics and drugs. स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा बेटा, वो पढ़े अभी आपने +2 में अल्कोहल्स और फिनोल्स, जिसमें आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप यू हैव स्टडीड बेटा, जिसमें OH सिंगल बॉन्ड था। और यहां हम डिस्कस करेंगे बेटा ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। और बेटा ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, दैट इज C डबल बॉन्ड O इज देयर, दे आर सेड टू बी, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और जिन भी कंपाउंड्स में ये फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं हम? CO ग्रुप, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। And this is one of the most important functional group in the organic chemistry beta. Since in aldehydes, carbonyl group is attached to the carbon and hydrogen atom beta, जबकि ketones में carbonyl group is bonded to the 2 carbon atoms. और बेटा ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें आपका कार्बोनाइल ग्रुप जो है दैट इज बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन, दे आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स कौन से? एस्टर्स और एनहाइड्राइड्स।
जबकि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है दैट इज अटैच टू नाइट्रोजन एंड हैलोजन, दे आर कॉल्ड अमाइड्स एंड एसिड क्लोराइड्स, और जिनको हम असाइल हलाइड्स भी कह सकते हैं बेटा। एंड सिंस देयर आर द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें आपका कार्बोनाइल ग्रुप है एज अ फंक्शनल ग्रुप, और वो हैं बेटा एल्डिहाइड्स, केटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये स्टूडेंट्स ऐसे क्लासेस हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या कहते हैं हम इनको? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक फर्स्ट वन दैट इज एल्डिहाइड्स। बच्चों एल्डिहाइड्स में जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है दैट इज अटैच्ड टू आइदर टू द 2 हाइड्रोजन एटम्स or 1 hydrogen atom or and your 1 carbon containing group, such as it may be alkyl group, it may be alkyl group, or you can say aryl group beta. जैसे कि let's say this is carbon beta, double bond O and single bonds are there, and this carbon is having your lone pair of the electrons, and this is carbonyl group beta. And on this side we have hydrogen, and on the other side also we are having hydrogen. So this is some aldehyde. On both sides of this carbonyl group we have hydrogen atoms. So this is a aldehyde beta. Then let's say similarly beta, this is a carbonyl group again. Now on one side we have alkyl group, and on the other hand side we are having hydrogen atom. So this is also your aldehyde. So students, next is your ketones. Next बेटा in ketones कार्बोनाइल का जो ग्रुप है that is attached to the 2 carbon containing groups बेटा, और ये ग्रुप्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। They may be alkyl groups, they may be aryl groups or alkyl groups बेटा। और इन कीटोन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा एज अ सिंपल कीटोन्स और मिक्स्ड कीटोन्स बेटा। लेट्स से दिस इज C11O, and then these are the lone pair of the electrons. Let's say this is a carbonyl group beta. On this side we are having your alkyl group, and the other hand side we are also having your alkyl group. Then this is a carbon double bond oxygen, then on both sides we are having your alkyl groups beta, but here one is R and other is R prime beta. So this means these are different alkyl groups. ये क्या है? Different alkyl groups है बेटा। So here we are having your different alkyl groups, जबकि यहां क्या है? हमारे पास same alkyl groups हैं बेटा। So this is simple ketone and this is mixed ketone. So I think simple ketone or mixed ketone is fine. So next is examples are there beta. Let's say this is there, CH3 is there, and here is also CH3 beta. This is simply your acetone. Then this is your CH3 and CH2 CH3. This is your butanone, rather 2-butanone. Now since if you see here we have the methyl groups on both either side of your this carbonyl group. So this was simple ketone beta, whereas in this ketone beta we are having ethyl group here, and here we are having a methyl group. So this is a mixed ketone. Now beta aldehyde group बेटा, फंक्शनल ग्रुप जो है आपका एल्डिहाइड्स का, उसको हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइडिक ग्रुप। जैसे कि आपका C11O, दिस इज H इज देयर ऑन दिस साइड बेटा, सो दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप। एंड कीटोनिक ग्रुप, कीटोन्स का जो आपका बेटा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज सेड टू बी, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? आपका
कीटोनिक ग्रुप कहते हैं. C11O on either side we are having your carbon atoms beta. This is a ketonic group, and in all the carbonyl containing compounds beta, this oxygen is having your 2 lone pair of the electrons. So this is a ketonic group. Now next is your carboxylic acid बेटा. ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ आपका OH ग्रुप भी अटैच्ड है बेटा, दे आर सेड टू बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. उनको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स. और जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा आपका? C11O and on one side we are having your OH group beta, and on the other side we are having your alkyl group. So this is your carboxylic acid. और ये R क्या हो सकता है? This may be your H, this may be your any alkyl group beta, this may be your alkyl group, or this may be your aryl group. So students, next is carboxyl group, or you can say carboxyl group. Carboxyl group is your nothing but that is the functional group of your carboxylic acids, जिसको हम क्या कहते हैं? carboxyl group. जैसे आपका C11O is there, and on the one hand side beta, on this side we are having your OH. तो this is carboxyl group, और कंडेंस्ड फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? COOH. Now beta, the carbonyl compounds which are obtained from carboxylic acids by the replacement of your OH part of the carboxylic group beta are said to be derivatives of the carboxylic acids. Okay बेटा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जो है अगर X से हम रिप्लेस करते हैं, then that will give us acid halides. Now you just see here, OH is replaced here by this X beta. So this is a acid halide. और यही OH when it is replaced by OCOR prime, let's say, then this is giving you RCOOCOR prime beta. This is giving you COOCR OR prime beta. And that is nothing but it's your acid anhydride. लेकिन जब इसी को हम OR प्राइम से रिप्लेस करते हैं बेटा, किसको? OH को, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को अगर OR प्राइम से हम रिप्लेस करते हैं तो ये क्या दे रहा है हमें? That is giving us ester. That is your RCOOR prime. That is your some ester beta. And then if this OH is replaced by your this NH2, then it is giving us amide beta, RCONH2. They are said to be your acid amides. And then let's say this is carboxylic acid beta. Let's summarize this. This is carboxylic acid. यहां OH को हमने रिप्लेस करना है किससे? OR प्राइम से बेटा. तो ये क्या हमें दे देगा? एस्टर, RCOOR प्राइम. That is some ester. Now if we are replacing this OH by your X beta, then that is going to give us this RCOX beta. That is your acid halides beta. Then if this OH is replaced by your NH2 beta, then it is giving us acid amides. And if this OH is replaced by your OCOR beta, then it is giving us acid anhydride beta, RCOOC11OR beta. That is a acid anhydride. और ये जो डेरिवेटिव्स हैं बेटा, they are also called acyl derivatives as they are having acyl group beta. इन सभी में आपका acyl group is there. That's why they are also said to be, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? acyl derivatives. This is acyl group beta, RC11O. This is acyl group. Is that clear? That is a RCO. That can be written like this.
नाउ सिंस ये जो आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके जो एस्टर्स हैं, दे आर वाइडली स्प्रेड इन नेचर एंड दे आर फाउंड बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम. And they are playing very important role in our life, beta. And they are also playing very important role in the biological processes. Students, ये जो आपके एस्टर्स हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स हैं, they are responsible for fragrance and also for the, you can say, flavor ऑफ द नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड. जैसे आपके फ्रूट्स हैं, लट से फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स की मैं बात करता हूं, तो जो आपकी फ्रूटी ऑडोर रहती है बेटा, दैट इज ड्यू टू द एस्टर्स. जैसे बनाना इज देयर, तो उसमें वन ऑफ द एस्टर इज देयर, दैट इज ऑफ अमाइल एसिटेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी नेचर की बात कर रहे हैं, सो दिस इज वेनिलिन. दिस इज वेनिलिन. वन इज एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर, मिथॉक्स इज देयर, हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज देयर. So that is a vanillin which is obtained from vanilla beans, beta. This is salicylaldehyde, beta, CHOOH. Then that is a salicylaldehyde, beta, and that is obtained from meadows sweet. Then this is a cinnamaldehyde, benzene के साथ CH double bond CHO, beta. Cinnamaldehyde which is obtained from cinnamon. And then this amyl acetate, beta. This amyl, yeah, you can say isoamyl rather. That is iso. CH3 is there. This second position pe, beta. Then it is CH3, CH, CH3, CH2, CH2, and that is isoamyl, and this acetate, that is isoamyl acetate, and that is found in bananas, beta. That is from bananas, beta. बनाना की जो भी आपकी फ्रेग्रेंस रहती है, दैट इज ड्यू टू दिस एस्टर, बेटा. दिस इज वन ऑफ द एस्टर. और स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड्स हैं, समटाइम दे आर यूज्ड टू ऐड द फ्लेवर टू मैनी फूड प्रोडक्ट्स एंड द फार्मास्यूटिकल्स, बेटा. मेनी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, बेटा, दे आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ योर एडेसिव्स, पेंट्स, रेजन्स, प्लास्टिक फाइबर्स एंड योर परफ्यूम्स, बेटा. प्लास्टिक एंड फाइबर्स, आई थिंक प्लास्टिक फाइबर कहा मैंने. प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स के लिए यूज करते हैं हम, परफ्यूम्स के लिए यूज करते हैं, बेटा. नाउ सिंस बहुत सारे जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर एडेसिव्स, पेंट्स, रेजन्स, प्लास्टिक्स, फाइबर्स एंड द परफ्यूम्स एटसेट्रा. परफ्यूमरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, बेटा. परफ्यूम्स में आपके मैक्सिमम योर एल्डिहाइड्स, और यू कैन से एल्डिहाइड्स एटसेट्रा, दे आर प्रेजेंट. और जो आपके ये एसीटोन है, बेटा, और एस्टिक एसिड है, दे आर वाइडली यूज्ड एज द सॉल्वेंट्स. कहां? इंडस्ट्री में और इन द लैबोरेटरीज, बेटा. सो नाउ let's discuss about the nomenclature of aldehydes and ketones, beta. Students, aldehydes may be aliphatic. Aliphatic में जो आपका CHO ग्रुप है, बेटा, that is attached to the alkyl group, so RCHO. This is aliphatic aldehyde. But when this CHO group is attached to your benzene ring, let's say, then that is aromatic aldehyde. Here this CHO group is attached to the aryl group, beta. That is aryl group. Let's say for example this is benzaldehyde, beta. This is benzene के साथ CHO group is there, so this is benzaldehyde. And always remember, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें आपका बेंजीन रिंग है, दे आर ऑल एरोमेटिक इन नेचर. सो अब यहां जो आपका बेंजीन के साथ CHO है, तो इट मीन्स दिस एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेटा. Students, two alkyl groups are attached to the carbonyl group in the ketones, बेटा. और ये कीटोन्स भी क्या हो सकते हैं? दे मे बी एलिफेटिक और दे मे बी एरोमेटिक. लेकिन
एलिफेटिक में क्या रहता है बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड ही आपके क्या हैं, एल्काइल ग्रुप्स हैं। और एरोमेटिक में क्या रहता है बेटा, इन एरोमेटिक कीटोन्स में दोनों साइड कार्बोनाइल ग्रुप के या तो दो अराइल ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर एक अराइल और एक एल्काइल। जैसे इस केस में बेटा एक एल्काइल ग्रुप है और दूसरा आपका अराइल ग्रुप है। नाउ सिंस दिस कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड to the double bonds beta, CO double bond is there and this is a carbonyl group जो अभी तक हमने किया बेटा, this is a carbonyl group, then this is a C double bond O, this is R and this is H, this is some aldehyde, then beta this is a carbonyl group beta, then on both sides we are having your alkyl groups beta, this is some ketone and then this is carbonyl group beta. So this is a R and this is a OH, this is a carboxylic acid beta. So aldehydes, ketones of carboxylic acid and the derivatives of carboxylic acid beta, they are all carbonyl compounds. They are all carbonyl compounds क्योंकि इन सभी में आपका क्या है बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप इज देयर, दैट्स व्हाई दे आर ऑल सेड टू बी योर, तभी हम इन सभी को क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर द टू सिस्टम्स ऑफ नेमिंग द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वन इज कॉमन नेम एंड अदर इज IUPAC names. Students, aldehydes and ketones are often called by their common names. प्राय इनको हम कॉमन नेम से जानते हैं बेटा, इंस्टेड ऑफ द IUPAC नेम। और जो आपके कॉमन नेम्स हैं बेटा मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स के, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और वो कैसे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का इक है बेटा, दैट इज रिप्लेस्ड बाय सफिक्स एल्डिहाइड। एक को हम एसिड के एल्डिहाइड से रिप्लेस कर देंगे। और बेटा उसी तरह जो आपका नेम है दैट रिफ्लेक्ट द लैटिन और ग्रीक टर्म फॉर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द एसिड और एल्डिहाइड। नाउ फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स है बेटा, फॉर्मिका मीन्स आंट। जब हमें मक्खी काटती है, सो वो क्या करती है, दैट रिलीज द फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से इरिटेशन रहती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन जो है रहती है बेटा। सो दिस फॉर्मिक एसिड का जो ऑरिजिन है बेटा, ये जो फॉर्मिक एसिड का ऑरिजिन है, दैट इज योर आंट एंड दैट इज योर फॉर्मिका। सो जिस सोर्स से आपका हम इसको ऑब्टेन कर रहे हैं बेटा, उसी के नाम से उसको हमने फॉर्मिक एसिड नाम दे दिया बेटा। उसी तरह बेटा जो आपके नाम हैं, नेम जो हैं, रिफ्लेक्ट द लैटिन और ग्रीक टर्म फॉर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द एसिड और एल्डिहाइड। और बेटा जो लोकेशन है ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इन द कंपाउंड कार्बन चेन बेटा, और जो आपकी लोकेशन है बेटा सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन में, दैट इज इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एटसेट्रा। और सिंस ये जो आपका अल्फा कार्बन है, ये वो कार्बन है जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है बेटा। और उससे नेक्स्ट आपका क्या कहलाएगा, आपका बीटा। और जो आपका बीटा कार्बन है, दैट इज नेक्स्ट टू द अल्फा, बीटा एंड सो ऑन। नाउ बेटा लेट्स से दिस इज CH3CHO, दिस इज ओ एसिटल्डिहाइड। ना बेटा एसिटिक एसिड दैट इज ओ का जो इक है IC दैट इज रिप्लेस्ड बाय योर एल्डिहाइड। मीन्स इक को हम रिप्लेस करेंगे बेटा
while naming the aldehydes, and उसके साथ हम suffix क्या लगा देंगे बेटा, aldehyde. Then this CH3CHO is acetaldehyde, because एक आपने रिमूव किया, suffix लगा दिया, then that is giving us acetaldehyde. Then students, this is a benzene के साथ aldehyde group is there, that is a benzoic acid. अगर हम देखें बेटा, सो बेंजोइक का एक रिप्लेस किया, एल्डिहाइड ऐड किया बेटा, सो ये क्या दे दिया इसने, बेंजल्डिहाइड. देन दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप ओवर हियर. अभी हम नंबरिंग की बात कर रहे थे. नंबरिंग में अल्फा बीटा गामा हम यूज करेंगे बेटा, और अल्फा कार्बन अभी मैंने बात की कि कौन सा कार्बन होगा, दैट इज योर नेक्स्ट टू दिस कार्बन, next to the carbon of this aldehyde group beta, that is alpha carbon, then beta carbon, then gamma, then delta, and so on. So since at beta position we are having a bromine atom over here, so now the name of this compound will be common name की बात हम कर रहे हैं बेटा, this is a beta bromo 1 2 3 4 ब्यूटाइराइल डिहाइड बेटा, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइराइल डिहाइड. नाउ ये जो आपके कॉमन नेम्स है बेटा कीटोन्स के, और जो कॉमन नेम्स है बेटा कीटोन्स के, दे आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द टू एल्काइल और अराइल ग्रुप्स विच आर बॉन्डेड टू द कार्बोनाइल ग्रुप. और जो आपकी लोकेशंस हैं बेटा substituents की, that is indicated by the Greek letters such as your alpha prime, beta prime, and so on. और ये पोजीशंस कैसे रहेंगी बेटा, अल्फा कौन सी रहेगी, जो कार्बोनाइल के साथ जो भी कार्बन है, दैट इज अल्फा, उससे नेक्स्ट आपका बीटा, एंड सो ऑन. नाउ स्टूडेंट्स, कुछ कीटोन्स की एक हिस्टोरिकल कॉमन नेम्स रहते हैं बेटा. जैसे अगर हम सिंपल डाइमिथाइल कीटोन की मैं बात करूं तो दैट इज एसीटोन. और ये जो आपके एल्काइल फिनाइल कीटोन्स रहते हैं बेटा, इनकी हम नेमिंग जो करते हैं यूजुअली, दैट इज डन बाय एडिंग द असाइल ग्रुप टू एज अ प्रीफिक्स टू द फिनोन बेटा. मीन्स असाइल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स हम लिखते हैं टू द फिनोन. अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे बेटा. लेट्स से दिस इज CH3 C11O CH3, दैट इज एसीटोन. नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने क्या कहा, असाइल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स लेंगे बेटा, दिस असाइल ग्रुप प्लस से दिस एसिटोफिनोन. नाउ हियर फिनोन इज द सफिक्स, तो एसिटोफिनोन हियर. Then this is a 1 2 3, this is a propiophenone. Then this is a benzophenone beta. Now IUPAC names. Since IUPAC names जो हैं आपके ओपन चेन अल्फेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, दे आर डिराइव्ड, या सिंस आईयूपीसी नेम जो हैं आपके ओपन चेन अल्फेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स बाय रिप्लेसिंग ई ऑफ द अल्केन विद द अल, और by replacing E of the alkane with one in case of ketones beta. Means al and one are the suffixes of aldehyde and ketones beta. और since in case of aldehyde जो आपकी longest chain है बेटा, कार्बन चेन, that is numbered, और बेटा एल्डिहाइड्स के केस में जब हम नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन की,
तो वो हम नंबरिंग कैसे करते हैं? विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप बेटा। और जबकि इन केस ऑफ कीटोन्स जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है उसको हम लोएस्ट नंबर देंगे बेटा। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिससे आपको कार्बोनाइल कार्बन को आपका लोएस्ट नंबर मिले बेटा। और जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं बेटा, दे आर प्रीफिक्स्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा। मतलब अल्फाबेटिकली उनको एज अ प्रीफिक्स हम लिखते हैं बेटा along with the numerals। और ये जो न्यूमरल्स क्या इंडिकेट करते हैं? दे इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द कार्बन चेन। और बेटा उसी तरह हम साइक्लिक कीटोन्स की बात करते हैं, तो जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है बेटा दैट इज नंबर्ड एज 1। नंबरिंग आपकी वहीं से शुरू होगी बेटा। देन जब आपके ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है बेटा, व्हेन दे आर अटैच्ड टू अ रिंग, एल्डिहाइडिक ग्रुप को जब हम रिंग के साथ अटैच करते हैं बेटा, देन वी यूज कार्बल्डिहाइड एज द सफिक्स। हम क्या सफिक्स यूज करेंगे बेटा? कार्बल्डिहाइड इंस्टेड ऑफ योर अल आफ्टर द फुल नेम ऑफ योर साइक्लोएल्केन्स बेटा। अभी बेटा जस्ट ध्यान दें और बाद में हम ये अभी एग्जाम्पल भी करेंगे इनके, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो आपका नंबरिंग है बेटा रिंग कार्बन एटम्स की, दैट विल स्टार्ट, वो कहां से स्टार्ट होगी बेटा? जहां आपका एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है। और जो आपका सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेटा, जो जिसके साथ आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, उसकी हम जब नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? बेंजीन के साथ मान लिया CHO ग्रुप इज देयर, वैसे तो बेंजल्डिहाइड है सिंपल, लेकिन IUPAC में आपका क्या रहेगा बेटा? बेंजीन रिंग के साथ जब आपका CHO ग्रुप अटैच्ड है देन इट इज अ बेंजीन कार्बल्डिहाइड। और बेटा जो कॉमन नेम है आपका बेंजल्डिहाइड का, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय योर IUPAC। और दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है बेटा, दे आर नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। उनको हम कैसे नेमिंग करते हैं बेटा? एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड्स। और इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स बेटा, फंक्शनल ग्रुप इज योर CHO। CHO इज द फंक्शनल ग्रुप बेटा। और सफिक्स क्या रहेगा बेटा? अल। जैसे आपके +1 में भी काफी हद तक किया होगा बेटा ये। जैसे कि आपको पता है IUPAC नेम में क्या क्या हो रहता है बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड रूट, और वर्ड रूट से पहले जो भी हम ऐड करते हैं बेटा दैट इज प्रीफिक्स, और उसके बाद जो भी ऐड करते हैं दे आर योर सफिक्सेस। वन इज अ प्राइमरी सफिक्स एंड अदर इज अ सेकेंडरी सफिक्स। और ये क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा? वर्ड रूट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और जो आपके प्रीफिक्स हैं बेटा, ये क्या हैं? दीज आर जस्ट द साइड सब्स्टिट्यूएंट्स। और जो आपका प्राइमरी सफिक्स है बेटा, दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बन कार्बन लिंकेज बेटा, कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स रहेगा बेटा प्राइमरी सफिक्स, और अगर डबल बॉन्ड है तो इन रहेगा यहां, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन YNE। और जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है बेटा, दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन फंक्शनल ग्रुप। So since let's say this is HCHO, there is only one carbon, so its word root is a meth. Then single bond is there, ane is there, then since CHO group is there, then al is the suffix beta. So this is a word root, this is a primary suffix, this is a secondary suffix beta. And अब दो वावल यहां इकट्ठे हैं बेटा, तो E को हम रिमूव कर देंगे। So beta, this is a methanol. उसी तरह here we have two carbon atoms, then this is eth, and carbon carbon के बीच में बेटा single bond is there, ane, then al beta, eth plus ane plus al, remove this E, then this is a ethanol. It's very simple. Then beta 1 2 3 prop plus ane plus al, propanol. Then 1 2 3 4
दिस ब्यूट एन अल, ब्यूटेनल बेटा। ना बेटा, जब आपके पास क्या है, दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, और ऑलवेज रिमेंबर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे ये कहां होंगे, दे विल बी ओनली एट द टर्मिनल पोजीशंस बेटा। कहां होंगे ये, टर्मिनल पोजीशंस पे ही होंगे। नाउ लेट्स से दिस वाज CHO इज देयर। नाउ C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा, सो दिस इथ प्लस एन प्लस 1 2 पोजीशन है बेटा, यहां 1 2 और 2 हैं तो डाई वर्ड यूज होगा बेटा, देन अल, डाई अल। सो दिस इथेन 1 2 डाई अल, इसका जो IUPAC नेम है बेटा वो क्या हो गया, इथेन 1 2 डाई अल। रिमेंबर हियर E is not removed because this is your D now. Now this is the CHO CH2 CHO sorry. Now this is CHO CH2 CHO beta. Now this is 1 और 3 position पे आपका, this is 1 2 3, 1 और 3 position पे आपका CHO group is there. So beta this is a prop ane plus 1 3 diol. तो ये क्या बन गया, प्रोपेन 1 3 diol. Then this is their CHO CH2 CH2 CHO बेटा, इसको कंडेंस भी कर सकते हैं दोनों CH2 को बेटा, दैट कैन बी रिटन एज CHO CH2 होल ट्वाइस बेटा, क्लियर, क्योंकि ये CH2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है CHO। तो यहां कितने कार्बन हो गए बेटा, 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स आते हैं, और 1 और 4 पे आपका क्या है, CHO ग्रुप इज देयर। सो दिस इज ऑ ब्यूटेन 1 4 डाइअल, ब्यूटेन 1 4 diol. Now since in case of your 3 aldehyde groups, अगर आपके पास aldehyde ग्रुप 3 हैं, जैसा अभी मैंने क्या कहा कि टर्मिनल पोजीशंस पे होंगे, तो टर्मिनल पोजीशंस 2 रहेंगी। सो बेटा जब आपका 3 aldehyde ग्रुप हैं, देन सफिक्स हम कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ योर अल। लेट्स से दिस इज देयर CHO CH2 CH, इस CH के साथ CHO इज देयर एंड देन CH2 CHO। हर एक कार्बन के साथ यहां एक एक एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा। नाउ जब ऐसे एल्डिहाइड्स की हम, जिनमें 3 एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, ऐसे एल्डिहाइड्स की जब हम नंबरिंग करेंगे तो वी विल नॉट काउंट दीज कार्बन्स ऑफ द एल्डिहाइड्स बेटा। सो नाउ नंबरिंग इज डन ओवर हियर फ्रॉम दिस कार्बन और फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3। सो 1 2 और 3 तीनों कार्बन पे एक एक एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा। तो दिस इज प्रॉप, 3 के लिए प्रॉप प्लस एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में बेटा, एंड 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड बेटा। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा। नाउ बेटा इन केस ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड O, और जिसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्या यही है वैसे, ये नॉट, इट्स नॉट कंडेंस्ड, CO सिंपल लिख सकते हैं हम। नाउ सफिक्स जो रहेगा दैट इज ओन, और प्रीफिक्स बेटा ऑक्सो और कीटो कैन बी द सफिक्स ओवर हियर फॉर दिस functional group, that is a ketonic functional group. तो बेटा IUPAC नेम में जैसे अभी हमने क्या कहा कि प्रीफिक्स रहता है बेटा, वर्ड रूट रहता है, प्राइमरी सफिक्स रहता है, सेकेंडरी सफिक्स रहता है, तो बाकी सेम रहेगा यहां बेटा। सेकेंडरी सफिक्स में क्या रहेगा आपका, दैट विल बी योर ओन, दैट इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर है ये कीटोन्स तो इसका सफिक्स जो होगा बेटा दैट विल बी योर ओन, और सफिक्स आपके साइड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहां। So beta, now let's say this is their CH3 C double bond O CH3. This is a 1 2 3 3 carbon atoms are there. This is a prop, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा एन, एंड देन ओन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप बिकॉज दिस कीटोन, तो दिस प्रोपेनोन, prop प्लस एन प्लस ओन, ई रिमूव हो जाएगा बेटा, देन इट्स प्रोपेनोन। पोजीशन इट्स अंडरस्टूड सेकेंड बेटा 2 है पोजीशन,
चाहे इस साइड से नंबरिंग करें चाहे इस साइड से नंबरिंग करेंगे 2 ही आएगी, तो नो नीड टू राइट, अदरवाइज इट्स ऑफ 2 propanone or you can say propan 2-on. Then this is there beta 1 2, this is 3 4, 2 पोजीशन पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप इज देयर, तो दिस इज ऑफ ब्यूट प्लस एन प्लस 2-on, तो दिस इज ऑफ ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन और यू कैन से ब्यूटेन 2-on. दिस इज रॉन्ग हियर बेटा, दिस इज रॉन्गली रिटन ओवर हियर, दिस मस्ट बी योर ब्यूटेनोन या फिर ब्यूटान 2-on. दिस ऑफ ब्यूटान, ई विल बी रिमूव्ड हियर. इज दैट क्लियर? दिस ई इज टू बी रिप्लेस्ड बेटा. सो दिस ऑफ ब्यूटान 2-on और यू कैन से 2-butanone या फिर 2-butanone, सिंपली यू कैन राइट. नाउ नेक्स्ट इज CH3 CH2 C11O CH2 CH3 इज देयर. 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पे इसका कार्बोनाइल ग्रुप है, तो दिस इज ऑफ 3-pentanone. तो पेंट प्लस एन प्लस 3-on बेटा, देन इट्स ऑफ pentane 3-on. E is to be removed beta. This of pentan, sorry. This is of pentan 3-on. E is removed here. Then beta 1 2 3, 3 पोजीशन पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप इज देयर, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन आर देयर और 3 पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, तो दिस इज 3 हेक्सेनोन या फिर हेक्सान 3-on. हेक्स प्लस एन प्लस 3-on, देन दैट इज गिविंग अस हेक्सान 3-on. नाउ बेटा इन केस ऑफ योर 2 ketonic groups, this is CH3CO CO CH3, तो 2 और 3 पोजीशन पे आपका केटोनिक ग्रुप्स हैं बेटा, तो दैट इज 1 2 3 4 ब्यूट एन एंड देन 2 3 डाइओन. ब्यूट प्लस एन प्लस 2 3 डाइओन बेटा. ई विल नॉट बी रिमूव्ड हियर बिकॉज डी इज द there now after this E, so it's so butane 2 3 dione beta, butane 2 3 dione. Now this is there, this is 1 2 carbon atoms are there, ethanol. Then it's there, नंबरिंग कहां से होगी बेटा? एल्डिहाइडिक कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 कार्बन एटम्स. और आपका ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रोमीन है बेटा, दे आर अरेंज्ड या दे आर प्रीफिक्स्ड अल्फाबेटिकली बेटा. इसको हम अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे बेटा. सो इनकी पोजीशंस क्या है बेटा आपकी? 1 2 3 4. तो बेटा ब्रोमीन जो है बी कम्स बिफोर द मिथाइल एम, सो दिस इज 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 हैप्ट प्लस एन प्लस अल. तो ये क्या बन गया बेटा? दिस इज 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हैप्टेनल. और बेटा नंबर को अल्फाबेट से हम सेपरेट करेंगे बेटा हाइफन से, और नंबर को नंबर से कॉमा से बेटा. जो अभी है नहीं, यहां एग्जांपल आएगा तो आई विल राइट, आई विल टेल यू बेटा, आई विल जस्ट टेल यू देन. सो दिस इज देयर. यहां बेटा one is of ketonic group and this is of cyclopentane and this of methyl group is there. तो बेटा जो नंबरिंग यहां होगी इस कार्बन से शुरू होगी जहां आपका ये केटोनिक ग्रुप है. तो दिस ऑफ 1 2 3, दिस ऑफ 3 मिथाइल साइक्लो 1 2 3 4 5 पेंटेन प्लस ओन बेटा. सो दिस ऑफ साइक्लोपेंटेनोन. तो दिस ऑफ 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन. Then this is beta aldehyde group is there, so the carbon is not linked to your this is not the part of your this ring beta. So this was cyclohexane, this was aldehyde group, so this was cyclohexane carbaldehyde beta, cyclohexane carbaldehyde. इसमें आपका ये CHO group जो है that is separately written over here and it is not counted here.
This carbon is not counted over here. Now beta, this is a N is there, double bond is there. So this was CHO, C double bond, C beta, CH double bond, CH, CH2, CH2, CH3, sorry. So this is 1, 2, 3, 4, 5. This is pent in al. और बेटा इन कौन सी पोजीशन पे? 2 पे. So the name is pent 2 in plus al. Enal. इन का ई भी रिप्लेस हो जाएगा बेटा यहां. तो दिस इज पेंट 2 enal. नाउ दिस इज अ बेंजीन रिंग के साथ CO ग्रुप इज देयर. दिस इज अ CH2 and CH3 बेटा. And its name is this of phenyl group. This of one phenyl 1, 2, 3 prop plus ane carbon single bond is there. Then this of first position beta. Then one one. This of one phenyl propan 1 one beta. Then here we have aldehyde group as well as ketonic group beta. So numbering is to be done from here 1, 2, 3. 3 position पे आपका ये आपका ketonic group है बेटा. So here main functional group is your aldehydic beta. Aldehydic group is given the preference over the ketonic group. So its name is 3-oxo. You know prefix जब हमने इसको लिखना है बेटा तो इसका oxo और keto यूज करते हैं हम. So this is 3-oxo 1, 2, 3, 4, 5 pent. Then एन देन अल. सो बेटा ई रिमूव हो जाएगा एन का तो ये क्या बन गया? 3-oxo pentanal. दिस 3-oxo pentanal. नाउ बेटा नेक्स्ट इज हियर वी हैव CH, CH3, CH3. Then C double bond O, CH, CH3, CH3. So students this is all. अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5 तो 2 और 3 पे आपका मिथाइल ग्रुप है तो दैट इज नेम्ड एज अ प्रीफिक्स बेटा. सो 2, 3 डाइमिथाइल. अब नाउ दिस इज कॉमा ओवर हियर. नंबर को नंबर से सेपरेट कर रहे हैं हम कॉमा से बेटा. 2, 4 2 और 4 पे मिथाइल ग्रुप से बेटा. 2, 4 डाई, दो हैं डाई मिथाइल. देन 1, 2, 3, 4 5 पेंट. देन एन. देन 3 ओन बेटा. 3 पोजीशन ऑफ दिस कीटोनिक ग्रुप बेटा. सो ये क्या हो गया? एन का ई रिमूव हो जाएगा बेटा बिकॉज नेक्स्ट इज ओ. तो दिस 2, 4 डाइमिथाइल पेंटान 3 ओन. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ हियर वी आर हैविंग योर 3 CHO ग्रुप्स बेटा. सो ये अभी ने पहले भी किया बेटा. 1, 2, 3 पोजीशन पे आपके एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं. तो दिस इज प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइकार्बल्डिहाइड. Propane 1, 2, 3 tricarbaldehyde. Now here beta, this is having your benzene ring and one is your aldehyde group and other is your nitro group. So since this is 4 nitro benzene carbaldehyde, 4 nitro benzene carbaldehyde. लेकिन जैसा मैंने पहले क्या कहा कि benzaldehyde is also widely that is also accepted by your IUPAC. Benzaldehyde is also accepted by your IUPAC. So beta this may also be written as 4 nitro benzaldehyde. 4 nitro benzaldehyde. So with this thank you. Hope you have enjoyed the today's lecture. Thank you. Have a nice day.